we have completed the unit 2. Now, unit 3, that is labor laws. Whatever title you have get is the labor laws. So under this unit, I used to teach various labor laws uh, to you. But see, from this year, whatever I was teaching in the last year or last to last year was different. And in this year, whatever I will teach you is a different. There are no much changes has come. But see, what is the change? Let's see, in the month of November, the central government has passed in the parliament four labor codes. Four labor codes are passed in the month of November, and from 1st April 2026, these all four labor codes are become applicable. Okay, so the new labor codes have become applicable to all the establishment. So whatever old labor laws, I am talking about the labor laws which are uh, passed by the central government. See, labor laws are kind of a laws. Let's see, if we talk about the constitutional power, okay, I have teach you in the direct text that concurrent list, state list, union list. So this labor protection and labor rights or labor wages, this item is the item of a concurrent list. It is not item of state list or union list, but it is the item of concurrent list. So central government and state government both have a power to make the laws relating to the labors. Okay. So लेबर के जो राइट्स है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए, लेबर का प्रमोशन के लिए, लेबर की हेल्थ सेफ्टी, लेबर का जो अपने एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन है, ओके, डिस्प्यूट्स है, ये सबके लिए लॉज बनाने जरूरी है. तो फॉर दिस both the governments are having the power to make the laws. Okay, now here in your syllabus, whatever labor laws we are talking, we will talk about that labor laws which are centrally applicable, which is issued by the central government and all over India in the same manner. Whatever laws are applicable, that labor laws we will going to cover. So we will nothing going to cover the state laws. Okay, state laws are also get covered here because now many laws are get subsumed or merged in this new labor codes. Okay, so previously what was the situation? There are around 29 labor laws were there. Okay, so government uh, has realized that these are the 29 various labor laws are that. Suppose I am an establishment, suppose I am a company or an industry or a partnership, whatever. But if I have employed the labor, and say if I cross the certain limit, and if the particular labor law has become applicable to me, okay, then I have to get registration under that particular law. Like suppose if I have employed more than 20 employees, then to me, the Provident Fund Act was become applicable. So I have to get registered separate registration under the PF Act. Suppose ESI Act has become applicable. Suppose I employ more than 10 employees, then ESI Act has become applicable. So I have to get the separate registration under the ESI. Okay. So if there are various acts were there, if particular law has become applicable to me, I have to get registered separately under the each act. I have to file the various form under the each act. I have to do the compliance of the various different laws. I have to contact with the various authorities. Okay. And not only that, see, in all the labor laws, the various definitions, like suppose a particular person is a employee under a one labor law, okay, because the employee's definition in particular labor law is given, and if he satisfy the criteria, then he will be treated as an employee.
So he is satisfying that criteria, so he becomes employee. Okay, but if another labor law, if you will refer, then in that, see, in that whatever definition is given, in that particular person is not treated as an employee, okay, or worker. तो वर्कर का डेफिनेशन अलग अलग दिया है अलग अलग लेबर लॉज में. देयर आर 29 डिफरेंट लेबर लॉज वर देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर्स और वर्कर्स. सो अलग अलग एक्ट में डेफिनेशन ऑफ वर्कर इज गिवन वाज डिफरेंट in different laws. See, suppose definition of wages is there. Just a minute. Hello, good evening. પેલા સર છે ને સોમવારે કે છે તો સોમવારે રાખજો ને કેમ કે શનિ રવિ કઈક બાર નહીં પેલી કઈક નાની આવે છે ને સૌથી નાની છે પોલો નહીં એ સિવાયની છે વેન્ટોસ. હા વેન્ટો ટાઈપ નાની ડિક્કી વાળી આવે છે ને એ છે. હા એ છે. So what I was discussing with you. Let's see, in the various laws, the definition of wages given was different. Like suppose PF Act says that 10% of the wages are required to be contributed by the employer. So in PF Act, the definition of wages is different. So वहां पे मैं wages अलग से गिनूंगा, उसका 10% contribution लूंगा. सपोज मुझे बोनस एक्ट एप्लीकेबल है तो बोनस एक्ट में एप्लीकेबिलिटी के लिए वेजेस की डेफिनेशन डिफरेंट है. तो अलग जगह पर अलग अलग डेफिनेशन दी थी. हर एक का एम्प्लॉयर को अलग अलग याद रखना है, अलग अलग कॉम्प्लायंस अलग अलग से करना है. तो एम्प्लॉयर्स वर फीलिंग वेरी मच डिफिकल्ट. सो टू सिंप्लीफाई व्हाट गवर्नमेंट डिड, it has subsumed all the 29 labor laws in 4 different labor codes. डिफरेंट 4 लेबर कोड्स में उसको सबस्यूम करके अभी 4 एक्ट ही बना. ओके, सो ये एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2026 से. ओके, सो आई वाज डिलेइंग इन टीचिंग दिस कि भाई आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स दैट आई विल नॉट टेक लेक्चर और समथिंग. सो वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस आल्सो कि भाई एक बार मेरे हाथ में कुछ मटेरियल मार्केट से आ जाए तो आई हैव टू टीच यू द लेटेस्ट प्रोविजन. ओके, otherwise if I will teach you the old labor laws which is not presently applicable, तो आपका जो भी नॉलेज में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होने वाली है वो यूजफुल नहीं रहे. इसीलिए मैंने वेट किया 1 or 2 days and then when I get the material. ओके, तो ये भी एक रीजन था कि सबसे लास्ट में मैंने लेबर लॉज दिया. तो एंड आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग पे ये साल ऐसा होने वाला है कि मैं लेबर लॉज सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं. तो दिस वाज द रीजन. So what government did? Government has subsumed all the 29 labor laws into 4 labor codes. Codes बना दिए. Okay, so they have made 4 labor codes, and in that codes various acts have get merged, and now there are only 4 labor codes. Okay, and see, out of that, see, being an account student, we are least concerned with that. The way what is the law relating to the trade union, or what is the law relating to industrial relation or industrial dispute, or what is the law relating to the health, safety or working condition. ये सब related laws हमें नहीं पढ़ने. See, we are concerned with the laws which are affecting to the finance. Okay, so we will cover gratuity, pension, ESI. Okay, ये सब जो laws है, okay, वो हम cover करेंगे. Maternity benefit act, because see, being a woman, all the girls must be aware that what are the maternity benefits are available. So see, only selected points that I have taken a part as of your syllabus. Okay, so out of that 4 codes, we will learn only 2 codes which is related to the finance. ओके, कि जहां पे पैसा आता है उसकी बात करेंगे. वी आर लीस्ट कंसर्न विद द इंडस्ट्रियल रिलेशन और ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट. वी आर लीस्ट कंसर्न विद दैट. ओके, वी आर कंसर्न विद कि भाई જ્યાં અકાઉન્ટિંગ ને અફેક્ટ થતું હોય એવા લેબર લોઝ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે, so let us start the same from the material. I hope that you all are watching the screen. You are able to see the screen. Okay, so let us start that. दिख रहा है ना स्क्रीन आपको? नहीं. You are not other anyone
दूसरा कोई स्क्रीन नहीं देख पा रहा है? नो सर। नहीं। नो सर। नो सर। just a minute. Entire screen, just a minute. Share. Now you can see the screen. Hello. यस सर। यस सर। Okay. यस सर। Suppose see. Yes, sir. Right now I'm teaching you by using this web version of this Microsoft Teams. Okay, so there is a possibility that after some time you may not be able to see the screen. So अगर ऐसा होता है तो interrupt me in between and I will start the screen. Okay, तो कभी भी screen ना दिखे तो आप मुझे interrupt करना. Okay, so let us start. I have shared this material to you. Or see, some of the students has told me that they have buy the material on these labor laws from the Xerox center. But see, yet I have not shared it with the Xerox one. I have shared with you. So if you will buy that old material, see, I am not concerned with that because see, I have not given this year that labor laws material to that person. तो अगर आपने buy किया भी है या आपने आपके कोई friends ने भी buy किया है, ask them not to read that material, to read this material which I have shared with you in a group. Because उसने क्या किया है कि भाई लास्ट ईयर का मटेरियल मेरे को बिना पूछे आपको देना चालू कर दिया. मैंने दिया है उसको, लेकिन लास्ट ईयर दिस ईयर आई हैव नॉट गिवन एनी मटेरियल टू यू. ओके, सो ये जो मटेरियल मैंने आपको ग्रुप में दिया वही मटेरियल पढ़ना. ओके, और अगर आपने लिया है तो दूसरा कॉपी करवा लेना. इग्नोर दैट पीपीटी वाला पुराना मटेरियल है, उसको इग्नोर करना. लेट अस स्टार्ट. सो सी, नाउ आई होप दैट यू सी द स्क्रीन. Yes. Yes, sir. Okay. So see, whatever I have told you, the same thing is mentioned on the page number 1. See, India has consolidated 29 central labor laws into 4 codes. Okay. There are 29 different labor laws were there. They have merged in these 4 codes. Okay. The purpose of this reform is why these laws are get merged and 4 codes are prepared. So the purpose of this reform is to simplify the labor law, to create the common definition. I have told you in the different laws, the different definition of worker is given, different definition of wages is given. So see here, to make the uniformity across all the laws, a common definition. Okay, and widen the coverage of the important protection. मतलब जो लेबर का वर्कर का जो प्रोटेक्शन है उसको वाइड करने के, and to reduce the multiple compliances. तो अगर आप मुझे 4 लॉ लागू पड़ रहा है तो 4 का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना, 4 के अलग अलग फॉर्म बनने हैं, तो ये सब मल्टीपल जो कॉम्प्लायंसेस थे उसको रिड्यूस करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड मोर इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क ऑफ वेजेस इंडस्ट्रियल रिलेशन. देखो, वेजेस इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी. देखो, ये लॉ के जो लेबर लॉज है इसके 4 मेन पिलर यही है कि भाई कोई भी वर्कर होता है तो वो वर्कर को क्या मिनिमम मिलना चाहिए. ओके, तो व्हाट ही शुड गेट. ओके, व्हाट ही शुड गेट. कोई भी वर्कर होता है देखो उसको मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए जो कैसे हो, रीजनेबल. ओके, तो एक वेजेस उसको मिलना चाहिए. दूसरा, द सेकेंड थिंग विच इज मेंशन हियर इज इंडस्ट्रियल रिलेशन. उसका उसके एम्प्लॉयर के साथ जो भी रिलेशन है वो हेल्दी होना चाहिए. अगर आप किसी कोई जगह पे काम कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयर से आपकी बनी नहीं रही, आपको लगता है ये नहीं अच्छा इंसान है, तो उसके आप मर मर के ही काम करो. और अगर आपके पास, आपको पता है अगर कि भाई नहीं ये मेरे साथ गलत कर रहा है, आई कैन फाइल द कंप्लेन अगेंस्ट हिम इन द लेबर कोर्ट. ओके, तो वो भी क्या करेगा, वो डरेगा कि भाई लेबर कोर्ट में जाएगा तो आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगा. और अगर वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसके रिजोल्यूशन के लिए सेपरेट कोर्ट्स भी है. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है उसको रिजोल्व कर, मतलब हेल्दी रिलेशनशिप. एक तो वेजेस आपको मिलने चाहिए प्रॉपर, सेकेंडली हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए. थर्ड इज व्हाट, यू शुड हैव अ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन. ओके, वर्किंग कंडीशन जहां पे आप काम कर रहे हो वो जगह कैसी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए. ओके, प्रॉपर होनी चाहिए, हेल्दी, हेल्थ और हाइजीन का केयर किया जाए ऐसी जगह होनी चाहिए.
और लास्टली जब आप रिटायर होते हो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो યુ શુડ ગેટ ધી સમ સોશિયલ સિક્યુરિટી બે રિટાયરમેન્ટ પછી પણ હું મારું જીવન સારી રીતના જીવી શકું એવું મારું એમ્પ્લોયમેન્ટ હોવું જોઈએ. તો કોઈ પણ જોબની અંદર આ ચાર જ વસ્તુ તમારે જોવાની હોય કે ભાઈ મને આઈ એમ ગેટિંગ અ પ્રોપર વેજીસ, I have a good relation with my employer, there is a good working condition, health और hygiene की केयर की जाती है. और फोर्थ वन इज व्हाट कि आफ्टर रिटायरमेंट with this job I am able to maintain my life. Okay, so I am getting the PF gratuity. Okay, so what will happen, I can survive even after the retirement. तो ये सब का जो स्कोप है उसको वाइडन करने के लिए देखो, to provide the more integrated framework for wages, industrial relation, safety and social security. ये चार चीजों को प्रोवाइड करने के लिए ही ये लेबर लॉ को फिर से बनाए गए, मतलब उसको मर्ज किए गए और सी एक नया चार नए लेबर कोड बनाए गए. तो सी देयर वर अराउंड 29 डिफरेंट लेबर लॉज आर एप्लीकेबल. તમે કોઈને એમ્પ્લોય તરીકે નોકરી આપી તમારી શું હાલત થાય કે 29 કાયદા મારે વાંચવાના પછી અને મારી અને નોકરી મેં એને આપી છે તો એને એના માટે આટલા બધા કોમ્પ્લાયન્સીસ કરવાના. તો નાઉ ઇફ ધેર ઇઝ ઓનલી 4 કોડ્સ, સી ઇટ વુડ બી ઇઝી ફોર એવરીवन ટુ મેનેજ ઓલ ધીસ. તો सी देखो ये चार कोड कौन से है, तो सी द 4 कोड्स आर, द फर्स्ट कोड इज दिस वन, कोड ऑन वेजेस. पहला कोड कौन है, कौन सा है, कोड ऑन वेजेस 2019. ये 2019 में बनाया गया होगा, तब से पार्लियामेंट में घूम रहा होगा. ये 2000 नवंबर 2025 में ये पास हुआ, लेकिन बना था 2019 में, इसीलिए उसका नाम है कोड ऑन वेजेस 2019. ओके, दूसरा लेबर कोड है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन. आपका आपके एम्प्लॉयर के साथ अच्छे से इंडस्ट्रियल रिलेशन बने, उसके लिए दूसरा कोड बनाया गया कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020. तो भी 2020 में बनाया होगा, पार्लियामेंट में आया होगा, तब से डिस्कशन चल रहा होगा. 2025 नवंबर में ये पास हुआ. तो सी ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020. द थर्ड कोड इज ऑक्यूपेशनल safety, health and working condition code 2020. So this is the third code. And the fourth code is the code on a social security. So ये चार code, code on wages, code on industrial relation, code on occupational safety, health and working condition and code on social security. ये चार code अलग अलग गवर्नमेंट ने बनाए by subsuming 29 different labor laws. Together, what these all 4 laws are doing, so together they are govern the minimum wages. भाई लोगों ने मिनिमम वेज मिलवा चाहिए. ये चारों मिलके क्या कर रहा है कि भाई मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस रेग्युलर होना चाहिए. મિનિમમ તો મળવા જ જોઈએ, પણ સાથે સાથે એનું રેગ્યુલર પેમેન્ટ પણ થવું જોઈએ. 7 તારીખની જગ્યાએ 25 તારીખે તમને પગાર મળે, પછી આવતા મહિને ફરી મોડું કરે. तो सी ये नहीं होना चाहिए कि वेजेस टाइम पे मिलने चाहिए. अगर अच्छा काम करता है तो उसको बोनस दो, प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा आप एम्प्लॉय के साथ शेयर करो, दैट इज नोन एज बोनस. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर एम्प्लॉय के साथ है और एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के साथ है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन. और एम्प्लॉय को जो राइट्स है उसके स्टैंडिंग ऑर्डर, मतलब प्रॉपर जगह पे एम्प्लॉय के राइट पे जगह पे लगे होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए मेरे क्या क्या राइट. देयर इज अ स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, और उसको हेल्थ, सेफ्टी, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब मिले. तो ये सभी चीज उसको प्रोवाइड करने के लिए ये 4 कोड बनाए गए. एंड सर्टेन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर अनऑर्गेनाइज और प्लेटफॉर्म वर्कर, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वहां पे भी काम करते हैं, ऐसे एम्प्लॉय के लिए भी ये लेबर कोड के अंदर प्रोविजंस रखे गए हैं. ठीक है, तो ये अल्टीमेटली मेन ऑब्जेक्ट है लेबर कोड, चारों लेबर कोड. देखो अभी ये 4 लेबर को आने से क्या क्या कौन से एक्ट कौन से कोड में मर्ज हुए. कोड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ एक्ट. ओके, but nowadays in a modern world for the act the word code is used. Okay, or I have discussed with you the difference on the code and act. Code is what the entire everything, rules and regulations are also a part of the act. Okay, but see, it does not mean that, see, if the code is given then rules are given. So rules compulsory अंदर होना जरूरी नहीं है, but see generally code and law act
उसमें कोई ज्यादा 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 डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। ओके, लेकिन ये सबको इकट्ठा करके एक बनाया गया तो उसको कोड नाम दिया गया। ठीक है, तो यू कैन सी ये चार मेन कोड्स बनाए गए। देखो, एक है कोड ऑन वेजेस, सेकंड इज अ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, occupational safety health and working condition code 2020 एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये चार अलग अलग कोड बनाए गए। देखो, ये पहला कोड है कोड ऑन वेजेस 2009। इसके अंदर कौन कौन से एक्ट जो पुराने 29 एक्ट थे उसमें से कौन कौन से एक्ट मर्ज हो गए। देखो, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये भी एक लॉजिक ये भी है। देखो, ये लॉ बहुत पुराना है। 1936 में जो एक्ट बना था उसको रिवाइज होता रहा होगा, लेकिन वही कोड हम वही एक्ट हम फॉलो करते हैं। वो एक्ट को हटा के उसको मर्ज कर दिया इन दी कोड ऑफ वेजेस एक्ट। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? हेलो, Yes, sir. हेलो। Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. ओके बेटा। तो देखो, ये कौन कौन से वेजेस का जो कोड है 2019 में, उसमें कौन कौन से एक्ट मर्ज हो गए। देखो, वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। इतने चार लॉज इसमें मर्ज हो गए और एक नया लॉ बना कोड ऑन वेजेस। ओके, और ये सभी एक्ट अभी आउटडेटेड हुए। दूसरा बना इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट। देखो, इसमें भी ये ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल, ये सब याद रखने की आपको जरूरत नहीं किसमें क्या मर्ज हुआ। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। एग्जाम में ये सब मतलब आई विल नॉट गोइंग टू आस्क भाई कौन सा लॉ किसमें मर्ज हुआ, बट दिस इज यू मस्ट नो। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड ट्रेड यूनियन एक्ट था, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट था और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था। ये तीन एक्ट मर्ज होके बन गया इंडस्ट्रियल रिलेशन। और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन के लिए फैक्ट्री एक्ट था, प्लांटेशन लेबर एक्ट था, माइनिंग का अलग एक्ट था, वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट का अलग अलग टाइप के एम्प्लॉय के लिए अलग अलग एक्ट के थे। देखो, मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्ट था, बीडी और सिगरेट वर्कर के लिए अलग एक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय के लिए अलग एक्ट था, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज के लिए अलग एक्ट था, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए अलग एक्ट था, जो सिनेमा में काम कर रहे हैं उसके लिए अलग एक्ट था, जो डॉक पे काम कर रहे हैं जो पोर्ट पे उनके लिए अलग एक्ट था, और बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों के लिए अलग अलग। तो अलग अलग लोगों की हेल्थ और सेफ्टी के लिए अलग अलग मेजर के लिए अलग अलग एक्ट। तो ये सबको मर्ज करके एक नया एक्ट बनाया, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। और लास्टली कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो देखो, सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट था, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट था, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट, सीनियर वर्कर वेलफेयर फंड, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एंड अनऑर्गेनाइज्ड सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये सभी एक्ट को मिला के ये बन गया ये वाला सोशल सिक्योरिटी। देखो, ये चार में से हम जो पढ़ने वाले हैं ये एक इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं, ये वाला द कोड ऑन वेजेस 2019, उसके भी कुछ सिलेक्टेड पॉइंट, और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये दो से हमें कोई लेना देना नहीं। तो फर्स्ट एंड लास्ट ये कोड ऑन वेजेस एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, दिस टू कोड्स, ये सब एक्ट को मर्ज करके बना है। तो ये हम पढ़ेंगे। देखो, अभी हर एक एक्ट किस चीज से डील करता है। देखो, तो कोड ऑन वेजेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि वो किस चीज का केयर करता है। द कोड ऑन वेजेस 2019 वाला जो कोड है वो किस चीज से डील करता है। देखो, तो लोगों को मिनिमम वेजेस मिले, उससे मिनिमम अटला वेजेस तो मरवा चाहिए। ओके, देन पेमेंट ऑफ वेजेस, कि उनको टाइमली पेमेंट मिल जाना चाहिए। फिर उसको बोनस और इक्वल रेम्युनरेशन, मतलब मेल और फीमेल में या अलग अलग टाइप के वर्कर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और सबको एक जैसा मतलब जो एक जैसा काम कर रहा है उसे एक जैसा रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। तो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है। तो ये चार इसके मेन ऑब्जेक्ट है कि भाई कोड ऑन वेजेस 2019 क्या चीजों से डील करता है, कि मिनिमम वेजेस, लोगों को मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, पेमेंट ऑफ वेजेस कि उसको पेमेंट टाइम पे होना चाहिए,
बोनस मिलना चाहिए, मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, और इक्वल रेम्यूनरेशन, मतलब बिटवीन द एम्प्लॉयज देयर शुड नॉट बी अ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो ये चार चीजों से डील करता है एक कोड ऑन वेजेस। इंडस्ट्रियल रिलेशन का काम क्या है? देखिए, ट्रेड यूनियन, ग्रीवांस लिटिगेशन, मतलब एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट है, वो स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग और ले ऑफ, एम्प्लॉय को ले ऑफ करना है, रिट्रेंच करना है, छूटा करना है, मतलब ओके, रिट्रेंचमेंट करना है और क्लोजर करना है। तो ये सब सिचुएशन में के लिए ये इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट काम करता है। और ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी से डील करता है। और ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, it deals with what provident fund, pension, employee deposit link insurance act, ESI, gratuity, maternity benefit, employee compensation and wider social security architecture, ये सब चीजों से डील करता है। देखो, हम आके डिटेल में जो भी पढ़ने वाले हैं, या तो इसमें से होगा या इसमें से होगा, ये दोनों में से हमें कुछ नहीं पढ़ना है। बट सी, ये चारों लेबर कोड आए, उसमें द मोस्ट इंपोर्टेंट, चारों लेबर कोड में एक सबसे इंपोर्टेंट जो मेजर चेंज हुआ और जो वेलकमिंग स्टेप है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेजेस। ओके, एंड देयर इज अ 50% रूल, ये कॉन्सेप्ट आया है। और ये कॉन्सेप्ट में वेजेस की डेफिनेशन अक्रॉस ऑल फोर कोड्स दिस कॉमन। ओके, देखो, पहले के टाइम में क्या किया जाता था कि भाई वेजेस जो है, वो वेजेस अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग डिफाइन किया गया है। और दूसरा, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अक्रॉस ऑल द लेबर कोड्स देयर शुड बी अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ वेजेस। so they want to make the common definition, so common definition of wages, वो कॉमन डेफिनेशन चाहते थे। और फिर ये कॉमन, जनरली वेजेस का मतलब क्या है कि आपका जो बेसिक सैलरी है, वो बेसिक सैलरी प्लस आपको जो डीए मिलता है, ये दोनों को ही जनरली क्या कहा जाता है? वेजेस। ठीक है, और फिर जैसे आपको पीएफ का कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, या ग्रेचुइटी का कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, या तो फिर आपको मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस, जिसको आप हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस का अगर कंट्रीब्यूशन देना है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन देना है, उसमें अलग अलग एक्ट में लिमिट दे गई थी। सपोज पीएफ में ऐसा बोला था कि एम्प्लॉय शुड कंट्रीब्यूट अप टू 10% ऑफ हिज वेजेस। ओके, तो 10% ऑफ वेजेस, अभी आप समझो, और यहाँ बोला है कि भाई 20% तक आपको कंट्रीब्यूशन है, यहाँ बोला है कि भाई 3%। जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू इमेजिनरी फिगर्स, कैसा बोला गया। तो एम्प्लॉयर क्या चालाकी यूज करते थे कि अपने एम्प्लॉय को ज्यादा कंट्रीब्यूशन ना देना पड़े। સપોઝ એમ્પ્લોયી આવશે તો એમ્પ્લોયી તો કહેશે કે સર હું મને 50,000 પગાર આપશું ને તો જ હું કામ કરીશ। ઓકે, એ લોકો શું કરે કે ભાઈ એનું આ બેઝિક સેલેરી છે ને એકદમ ઓછો રાખે, ભાઈ તારો બેઝિક સેલેરી 5,000, તો કે તને ડીએ કેટલું મળશે? તો કે ડીએ પણ તને 100% આપીશું, એટલે 5,000 બીજું ડીએ મળશે। ને કે બાકીના 40,000 તો કે એ બધા તમારા અલાવન્સીસ, એટલે તમને મેડિકલ અલાવન્સ, ક્લોથ અલાવન્સ, યુનિફોર્મ અલાવન્સ, चिल्ड्रन अलाउंस, બધા अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ऐसे करके आपको दूसरे 40,000। ठीक है, अभी आपको मिल कितना रहा है? यू आर गेटिंग 50,000। बट जब आपका एम्प्लॉयर को आपके पीएफ में कंट्रीब्यूट करना है, तो वो किसका कंट्रीब्यूशन देगा? तो 10% ऑफ वेजेस। एंड व्हाट इज वेजेस? वेजेस इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक प्लस डीए तो 10,000 ही हुआ, तो ये 10,000 का ही 10% वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो एम्प्लॉयर को अपना कंट्रीब्यूशन कम करने के लिए एम्प्लॉयर क्या करते थे? ये अलाउंस का पोर्शन बड़ा रखते थे और बेसिक और डीए का पोर्शन कम रखते। ओके, और दूसरा क्या था कि इन डिफरेंट एक्ट देयर वाज अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ वेजेस। सो सी, कोई जगह फॉर्मिंग पार्ट, कोई जगह नॉन फॉर्मिंग पार्ट, इतना परसेंटेज भी देना है, इतना। अगर आपने सेकेंड ईयर बीकॉम में सैलरी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो देखना, उसमें अलग अलग पॉइंट में सैलरी का डेफिनेशन अलग अलग आता है। ओके,
Now the salary chapter in the Income Tax Act also will get changed to align this. Okay. So see, इसीलिए यहाँ पे वेजेस का बहुत कॉमन डेफिनेशन दे दिया और एक 50% की वाला एक रूल भी लेके आया. तो ये रूल क्या है? Okay, or across all four acts, the definition of wages is common. Okay, they have made the definition of wages common, and there is one rule they have come, that is 50% rule. ये लोग ऐसा जो कर रहे थे, जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ऐसा जो कर रहे थे, कम कम अमाउंट देने का बेसिक और डीए में और बाकी सब पोर्शन रखने का अलाउंसेस में. तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का जो खर्चा ये एम्प्लॉय के पीएफ में, ग्रेच्युइटी में या तो फिर कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस में देना है कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का हिस्सा कम हो गया. तो ऐसा ना हो इसीलिए कॉमन डेफिनेशन हैज मेड. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दी. समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, Yes, are you sir. there? Okay, Yes. and can you see the screen? Yes, sir. Okay, well, so let us go ahead. Let us go ahead. The concept of wages is a central to the labor codes. मतलब चार कायदानी अंदर wages નો concept આ લોકો શું કરી દીધો common. For all the acts, what is wages? The wages is equal to basic plus DA. और ये उन्होंने कर दिया. And see, तीन चीज, बेसिक, डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस. बट सी, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन थी, हटा चारों कोड में वेजेस का डेफिनेशन सेम कर दिया और एक 50% वाला रूल लेके आए, वो भी मैं आगे समझाता हूँ क्या है. इन सिंपल टर्म्स देखो, चारों कोड में लेबर वेजेस का डेफिनेशन कॉमन कर दिया. एंड इन सिंपल टर्म्स द वेजेस इंक्लूड व्हाट? नाउ व्हाट इज वेजेस? बेसिक, डीए, डीएनएस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस. मतलब एम्प्लॉय ने रिटेन કરવા માટે અમુક પૈસા તમે આપતા હોય, બેટું रिटेनिंग अलाउंस बोलते हैं. ये तीन चीजें. रिटेन मतलब लॉन्ग टर्म पे टका रहे उसी लिए कुछ एडिशनल अमाउंट आप उसको देते हो, दैट इज अ रिटेनिंग अलाउंस. डीएनएस अलाउंस એટલે મોંઘવારી ભથ્થું અને બેઝિક इज अ बेसिक सैलरी. ये तीन के कॉम्बिनेशन को वेजेस कहा जाएगा इन ऑल फोर एक्ट्स. इन ऑल द फोर एक्ट व्हाट इज वेजेस हियर? वेजेस मींस सी बेसिक, डीएनएस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस. All three are collectively known as wages. Okay. Now, if any, अगर रिटेनिंग अलाउंस दे रहे हो तो तीनों के कॉम्बिनेशन, अगर आप बेसिक और डीए तो कंपलसरी देना है. रिटेनिंग अलाउंस आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं दे रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बेसिक और डीए इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द वेजेस. इसीलिए यहाँ रिटेनिंग अलाउंस के बाद लिखा इफ एनी, अगर आप दे रहे हो. Now certain items are excluded. देखो wages की definition में से क्या हट गया? So now wages definition does not include the house rent allowance, conveyance allowance, overtime allowance, employer's contribution to provident fund, gratuity, retrenchment compensation. ये जो भी दूसरा जो भी मिल रहा था वो सबको हटा दिया. Now only three things are the wages: basic plus DA plus retaining allowance. अगर आप दे रहे हो ये तीनों के combination को आप wages कहोगे. However, these excluded components exceed 50% of the total remuneration, then excess amount is added back to the wages. So this is the 50%. Now what this 50% rule says, this 50% rule says that whatever allowances you are paying, whatever amounts are excluded from the definition of wages, if it is exceeds, अगर वो exceed होता है, okay, देखो, if excluded component exceeds 50% of the total remuneration, अगर total remuneration के 50% से अगर वो बढ़ गया वो excluded amount, तो excess amount is added back to the wages. So wages will not be always the basic plus DA, but see, suppose if you have made this kind of arrangement and if this excluded amount is exceeds 50% of your total remuneration, then whatever amount is in excess is required to be added back, and that whatever new total amount comes, that will be treated as a wages. Okay, this rule was introduced to prevent the artificial salary structure in which the basic is kept low and in most remuneration is shifted to the allowance.
इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, ये जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज है कि कुछ परसेंटेज आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, ये कम करने के लिए लोग क्या करते थे कि भाई बेसिक ओछो રાખવાનો, ડીએ ઓછું રાખવાનું ને અહીંયા વધારે પૈસા આપવા. ओके, तो एम्प्लॉई टका भी रहेगा और आपका कंट्रीब्यूशन कम होगा. तो इसीलिए ऐसा आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर कोई ना करे, इसीलिए ये नए लेबर लॉस के अंदर ये 50% वाला रूल आया. एंड बिकॉज ऑफ दिस रूल, देखो ये रूल से क्या बेनिफिट होता है. द वेज फिगर यूज फॉर लेबर लॉ कैलकुलेशन में बी हायर देन बेसिक पे शोन इन द सैलरी सेट. ओके, તમારો બેઝિક અને ડીએ જે છે એના કરતા પણ હવે જે વેજીસ આપણે જે તમારા સોશિયલ સિક્યુરિટી બેનિફિટ માટે જે વેજીસ ગણવાના, अलग अलग स्टैट्यूटरी ग्रेच्युटी पीएफ ईएसआई सबके अंदर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए पहले जो वेजेस देते थे, क्योंकि लोग बेसिक कम रखते थे बाकी सब ज्यादा रखते थे, तो एम्प्लॉय टिका भी रहेगा लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो कम जाएगा. वो कम ना हो और सबको अच्छे से रेम्यूनरेशन मिले और उसका स्टैट्यूटरी जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी प्रॉपर हो, उस वो करने के लिए this new definition of wages is given. देखो there is one example, let us take one or two example. देखो ये एक कंपनी है Blue Wave Retail Service LLP, is a retail establishment. सपोज एक retail establishment है, ओके, और उसके एक एम्प्लॉय है प्रिया नायर, स्टोर एग्जीक्यूटिव. देखो उसका बेसिक कितना है 16,000 एंड डीएनएस अलाउंस कितना है 2,000. देखो रिटेनिंग अलाउंस नहीं दी, मतलब उसका बेसिक प्लस डीए कितना हुआ 16 और 2 18,000. और हाउस रेंट अलाउंस उसका कितना है 8,000. कन्वेंस अलाउंस 3,000 है और कुछ स्पेशल अलाउंस 11,000 दे रहे. तो टोटल रेम्यूनरेशन हाउ मच शी इज गेटिंग 40,000. देखो वो वैसे अमाउंट बहुत बड़ा हो गया 40,000, तो एम्प्लॉय ये सेल्स एग्जीक्यूटिव टिकी रहेगी. देखो उसका बेसिक कितना है, उसका बेसिक प्लस डीए अगर हम देखने जाए तो बेसिक प्लस डीए, तो बेसिक इज 16,000 एंड डीएनएस अलाउंस इज 2,000. तो देखो नॉर्मली अगर हम देखने जाए कि ये 16,000 है और डीए उसका 2,000, अगर नॉर्मल जूनी डेफिनेशन प्रमाणे જોવા જઈએ તો એના વેજીસ કેટલા થાય, હર વેજીસ ઇઝ ઓનલી 18,000. બટ નાઉ સી, તો ભલે એને 40,000 મળે છે પણ એનું પીએફ નું કોન્ટ્રીબ્યુશન કે એનું ઈએસઆઈ નું કોન્ટ્રીબ્યુશન કે જે કે પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન છે 40 પર નહીં ગણાય, શાના પર ગણાતું હતું on 18,000. नाउ ये 50% वाला रूल जो आया वो क्या कहता है, ये 50% वाला रूल क्या कहता है कि एक्सक्लूडेड अमाउंट. देखो अभी नाउ व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ वेजेस, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी. तो रिटेनिंग अलाउंस तो इधर कुछ है नहीं, तो इसका ये हुआ. लेकिन एक्सक्लूडेड अमाउंट क्या है, देखो ये सबको इंक्लूड नहीं किया जाता है वेजेस की डेफिनेशन में. कि अगर आपको एचआरए मिलता है या स्पेशल अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, ये सबको इंक्लूड नहीं किया जाता. तो ये एक्सक्लूडेड अमाउंट क्या है, देखो यू कैन सी शी इज गेटिंग हाउस रेंट अलाउंस 8,000, कन्वेंस अलाउंस 3,000 एंड स्पेशल अलाउंस 11,000. एचआरए उसको मिल रहा है, शी इज गेटिंग एचआरए 8, 3 અને 11. ઓકે, તો સી 8,000 આ મળે છે, 11,000 આ મળે છે અને 3,000 ये मिल रहा है. ओके, तो ये टोटल मिल रहा है उसको 22,000. ओके, ये उसको मिल रहा है 22,000 और ये दोनों का टोटल करें, ये बेसिक प्लस डीए प्लस दिस, ऐसे करके उसका सैलरी हो रहा है 40,000. नाउ यू कैन सी दिस इज द बेसिक एज पर द लॉ, दिस इज द वेजेस एंड दिस इज द एक्सक्लूडेड पोर्शन कि ये वेजेस में इंक्लूड नहीं हो रहा. नाउ ये 50% रूल क्या कहता है कि अगर this excluded amount exceeds, हेलो हाँ सर, हाँ ओके सर હું હમણાં આપને કરી દઉં બધાને. હા હા ના ન કરી દઉં સર, હમણાં જ આવું છું ને ઓફિસ બરાબર. ઓકે ચોક્કસ. So what I was discussing with you, देखो ये 40,000 उसका टोटल सैलरी,
उसमें 18,000 वेजेस एज पर डेफिनेशन है और ये 22,000 एक्सक्लूडेड अमाउंट, ठीक है। नाउ एंड टोटल इज हाउ मच 40,000. नाउ व्हाट 50% रूल सेज कि इफ excluded amount is more than 50% of the total remuneration, then excess amount is required to be added in the wages. So what is the excluded amount? 22,000. And what is your total remuneration? 40,000. 40,000 का 50% हम करते हैं, ओके, इसका 50% 40,000 का करते हैं तो कितना होता है? 20,000. ओके, और आपका एक्सक्लूडेड अमाउंट कितना है? 22,000. मतलब 22,000 ये मेरे इसका 50% से कितना ज्यादा है? 2,000. तो दिस 2,000 विल बी एडेड इन द वेजेस और उसके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए वेजेस 18,000 नहीं, लेकिन कितना गिना जाएगा? 20,000. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस? हेलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो यहाँ उसका टोटल 40 था, तो मैंने 40 का 50% किया, मुझे पता चला 20,000 है, लेकिन ये टोटल एक्सक्लूडेड अमाउंट कितना है? 22,000 से. तो 22 मतलब 20,000 से कितना ज्यादा अमाउंट है? तो क्या 2,000. तो ये 2,000 वेजेस में ऐड करने का. तो भले एज पर डेफिनेशन उसका वेजेस 18,000 हो रहा है, बट दिस एक्सक्लूडेड अमाउंट का इमेज जो एक्सेस अमाउंट है दैट इज टू बी एडेड and this 20,000 will be treated as a wages for calculation of various benefits under the various codes. But see here the wages will be treated like this. देखो यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसका wages 20,000 गिना जाएगा. देखो the calculation is as follow: basic plus DNS allowance is 16 plus 2, that is 18,000. But see the remaining amount 40 में से ये 18 निकाल दे तो बाकी कितना बचा? 22,000. So 50% of the total remuneration, 40 ना 50% कहीं से तो 20,000 चाहिए. तो since the allowance 22,000 exceeds 20,000, so ये 2,000 से exceeds amount है. तो excess amount अगर मैं 18,000 में ऐड कर देता हूँ तो 18,000 plus 2,000, 20,000 will be treated as a wages and not 18,000. Okay, देखो वही तरीके का एक दूसरा एग्जांपल है कि लोटस इन्फोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज एन ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट. राहुल वर्मा एन अकाउंटेंट receives the basic salary 24,000. उसका बेसिक कितना है? 24,000. डीएनएस अलाउंस कितना है? 4,000. ओके, तो उसका अगर बेसिक प्लस डीए करते हैं, देखो बेसिक प्लस डीए, उसका बेसिक प्लस डीए ये उसका नॉर्मल वेजेस होगा एज पर डेफिनेशन. ओके, तो बेसिक सैलरी कितना है उसका? 24 और डीएनएस अलाउंस 4, मतलब 28 होगा. ये 24,000 है और ये आपका हुआ 4,000. तो टोटल हुआ आपका हेलो, हाँ बापू, हाँ जो ऑफिस छू आવું એટલે આવું. હા, ચોક્કસ ચોક્કસ. अच्छा, तो ये उसका बेसिक प्लस डीए इज हाउ मच? टोटल 28,000. इस बेसिक प्लस डीए इज इक्वल टू 28,000. ये एज पर डेफिनेशन अगर देखने जाए तो उसका वेजेस यही है. Now let us see the excluded amount कि उसके excluded amount है बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेंशन अलाउंस के अलावा बाकी जो भी excluded amount है. देखो एचआर है 8,000 है, अदर अलाउंस 4,000 है. ओके, तो देखो अदर अलाउंस मतलब एचआर है उसका 8,000 है, अदर अलाउंस दूसरा 4,000. 28 ने 8, 28 ने 12, टोटल કેટલા થયા? 28 ને 12, ટોટલ એનું રેમ્યુનરેશન છે 40,000. ओके, नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डेफिनेट वेजेस एज पर 50% रूल. ओके, तो देखो इसका अगर मैं 50% करता हूं तो 20,000 होता है. क्या मेरा एक्सक्लूडेड अमाउंट इससे ज्यादा है? एक्सक्लूडेड अमाउंट इज 12,000 एंड इट इज नॉट इन एक्सेस ऑफ 20,000. ये 20,000 से ज्यादा नहीं है, तो नथिंग विल बी एडेड इन द वेजेस. यहाँ कुछ ऐड नहीं होगा. और here for calculation of various benefits what will be treated as a wages? 28,000. तो यहाँ से कुछ ऐड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये टोटल रेम्युनरेशन का जो 50% है 20,000 उससे ज्यादा नहीं हो रहा है 12,000, तो वो ऐड नहीं होगा. तो अगर ये टोटल रेम्युनरेशन का 50% से ज्यादा अगर आपका एक्सक्लूडेड अमाउंट है तो जितना एक्सेस है दैट अमाउंट यू आर सपोज टू ऐड. ओके, तो यहाँ कुछ ऐड नहीं होगा. तो हियर इट इज मेंशन, देखो
So his total remuneration is 40. But see, basic plus TNS allowance is only 28,000. Excluded amount is only 12,000. तो 50% ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन अगर मैं करूंगा 40,000 का, तो ये 20,000 ही होता है, और 20,000 से 12,000 ज्यादा नहीं है. सो देर इज नो एड बैक इन दी राहुल वेजेस. और राहुल के वेजेस कितने रहेंगे? 28 के 28 ही रहेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेजेस बेनिफिट अंडर दी ऑल 4 एक्ट्स. ओके, सो अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वेजेस? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. Now let us discuss the next point. Code on wages 2019. देखो अभी ये मैंने सिर्फ ये चारों एक्ट में कॉमन डेफिनेशन ये था, वो हमने डिस्कस किया. अभी हम ये पहला कोड डिस्कस कर रहे हैं, कोड ऑन वेजेस. इसका मेन काम क्या है कि भाई मिनिमम वेजेस लोगों को देना, पेमेंट ऑफ वेजेस टाइम पे होना चाहिए, बोनस एंड इक्वल रेम्यूनरेशन. उसमें से जो हमारे काम का है इक्वल रेम्यूनरेशन, ये सब बातें हैं. ठीक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, उसमें कुछ कैलकुलेशन वाला नहीं है. तो ये हम कवर क्या करेंगे? मिनिमम वेजेस एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एंड बोनस. ये 3 पॉइंट हम कवर करेंगे. तो उसमें से हम पहला पॉइंट कवर करते हैं, मिनिमम वेजेस एंड पेमेंट ऑफ वेजेस वाले 2 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं. देखो, तो कोड ऑन वेजेस, तो पहला द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज व्हाट? पेमेंट ऑफ वेजेस. क्या पेमेंट कब करोगे? व्हेन यू विल मेक द पेमेंट ऑफ वेजेस. एंड व्हाट लॉस है इसके पे, कितने दिन में कब पेमेंट कर देना चाहिए? तो सी, द कोड ऑन वेजेस डील्स विथ मेनली 4 थिंग्स. मिनिमम वेजेस, एम्प्लॉय ने कितना मिनिमम वेजेस मरवा. एक सेकंड ये ना टाइम पर पेमेंट मरवू जो, दैट इज द पेमेंट ऑफ वेजेस. इक्वल रेम्यूनरेशन मतलब किसी भी एम्प्लॉय के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. जो जितना काम कर रहा है उसको कितना, मतलब सिमिलर से. सपोज હું એકાઉન્ટન્ટ છું, તમે એકાઉન્ટન્ટ, તમને 10 વર્ષનો અનુભવ છે, મને 10 વર્ષનો અનુભવ, તો આપણા બેનો સેલરી સરખો જ હોવો જોઈએ. ओके, तो इसको बोलते हैं इक्वल रेम्यूनरेशन. और इसमें कुछ कैलकुलेशन वाला नहीं है, तो हमने नहीं दिया. और बोनस, बोनस आपके प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एम्प्लॉय को देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बोनस. The code on wages deals with these 4 things. Okay, minimum wages, payment of wages, equal remuneration, and bonus. So one of the most important feature is the wider application of minimum wages principle and extension of wages payment and product protection beyond the narrow wage ceiling approach. Okay, तो देखो यहाँ पे ये जो लेबर कोड 2019 जो वेजेस से रिलेटेड आया, उसमें मेन एम्फेसाइज किस चीज पे किया कि भाई ये वेज प्रोटेक्शन है उसका, कि भाई वेज का जो पेमेंट का प्रोटेक्शन है, यही टाइम पे, इतने टाइम पे वेजेस मिल जाने चाहिए. एक पॉइंट. और सी, मिनिमम वेजेस उसको मिलने चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट ने बनाया कि इतना मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए. और सी, नैरोइंग द वेज सीलिंग अप्रोच. वेज सीलिंग की जो अप्रोच है, मतलब वो डेफिनेशन हमने देखा कि वेज कम करके, तो वो उस पे ध्यान देगा. देखो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि वेजेस कब तक पे कर देने चाहिए. तो उसके लिए ये कोड ऑन वेजेस क्या कहता है? देखो, हर एक एम्प्लॉयर को, एवरी एम्प्लॉयर मस्ट फिक्स द वेज पीरियड फॉर देम. मतलब देखो, फॉर डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज there is a different wage payment cycle. Okay, there is a different wage payment cycle. So whenever employee joins your organization, you have to determine or you have to decide okay, at what time, मतलब are you appointed on a daily basis, or are you appointed, or you will get the wages on weekly basis or 15-day basis or monthly basis. मतलब आप कौन से तरीके से उसको पेमेंट करोगे, that you have to decide. Okay, you have to decide with your employee that you will get the payment in this way. You are a daily wages, तो daily wages वाला ने at the end of the day पैसा मरी जमा. Okay, तो आपको पहले क्या करना है, whenever, or you have to inform the government officers also that these are my employees, total employees. Out of that, this much employees are getting daily wages, these much employees will be paid on weekly basis, these employees will be paid on fortnightly basis, and these employees will be paid on monthly basis. But in any case, એવું કે આપણે 6 મહિના વાળું રાખે સારું, 6 મહિના સુધી એમ્પ્લોયી સેલરી જ નહીં આપવાનું. No, in any case you cannot
exceed the payment of wages for their 1 month. Okay, so see, the every month employer must fix the wage period. हर एक employee को employee के साथ उसका wage period decide होना चाहिए. The wage period may be daily, weekly, fortnightly, monthly. But see, it cannot exceed 1 month. આપણે 2 મહિને પગાર આપીશું એવું ના કરી શકો. મંથથી વધારે you cannot extend the wage period. And once the wage period is fixed, wages must be paid within the prescribed time. એક વખત તમે period fix કર્યો, so see you have to make the payment in a prescribed time. Okay. So separate rule applies when the employee leaves by resignation, dismissal or termination. Okay. તો જ્યારે એમ્પ્લોયી છોડીને જતો હોય તો એના માટેના રૂલ પાછા જુદા છે. ઓકે, हम देखेंगे यहाँ. So in this such case all the wages must be paid. देखो यहाँ पे क्या बोला, अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाता है ड्यू टू रेजिग्नेशन, डिसमिसल और टर्मिनेशन, उसके लिए क्या रूल बनाया गया कि इन सच केस all the wages must be paid within 2 working days from the cessation of employment. જે દિવસ એનું એમ્પ્લોયમેન્ટ સીઝ થયું એના 2 દિવસમાં એને પે કરી દો. ઓકે, યુ કેન નોટ પહેલી તારીખે પગાર થાય છે, તું આવતી પહેલી આવજે પગાર લેવા, એવું ના કહી શકો. સપોઝ હું પહેલો આખો મહિનો કામ કર્યું and see suppose not whole month, I have work up to 16th of particular month, so 16 days I have work. So on or before 18th, मतलब 18th मतलब मेरा एम्प्लॉयमेंट करता हूँ 16 को, तो विदिन 2 वर्किंग डेज मतलब 2 દિવસની અંદર મને પારું ફૂલ પેમેન્ટ કરી દેવાનું. એ મને એવું નહીં કહેવામાં આવે કે તું પહેલી તારીખે આવ. अब this पहले ऐसा था, लेकिन now what this labor laws code says कि within 2 working days from the cessation of the employment you must make the payment. Now suppose you are fixed, तो अलग अलग प्रकारना वर्कर जोड़े अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट હોય. Suppose you have appointed someone on the daily wages, then see within what period you have to make the payment at the end of the day. દિવસ પૂરો થાય એટલે એને એના પૈસા ચૂકવી દો. If someone is appointed on daily wages, you should make the payment at the end of the day. Suppose someone is appointed by you as an employee on a weekly basis, तो see आपको कब पे करना है? On the last working day of the week. वीक नो जे छेल्लो वर्किंग डे છે તે દિવસે તમે એને પેમેન્ટ કરી દો. So this is the rule. अगर फोर्टनाइटली किया है तो कब आपको पेमेंट करना है? Before the end of the second day after the end of the fortnight. 15 દિવસનું સિચ્યુએશન હોય બરાબર, 1 થી 15 તારીખનો તમારું સપોઝ પેમેન્ટ સાયકલ છે, તો ક્યાં સુધી પેમેન્ટ કરવાનું? તમે 1 થી 15 તારીખે કામ કર્યું, before end of the second day after the end of the fortnight. ફોર્ટનાઇટ ક્યારે પૂરી થઈ કે 15મીએ પતિ, પહેલી તારીખે તમે સપોઝ જોબ ચાલુ કરી, તમારી ફોર્ટનાઇટલી સેલેરી થાય છે તે દર 15 દિવસે આપવાનું, તો 15 તારીખ પૂરી થાય એના પછીના मतलब सेकंड डे फ्रॉम द एंड ऑफ द फोर्टनाइट. फोर्टनाइट कब एंड हुई? 15 तारीख को, उसका सेकंड डे एंड ऑफ द सेकंड डे ऑफ द फोर्टनाइट, मतलब सेकंड डे इज द 16 नहीं, सेकंड डे इज द 17, एंड ऑफ द सेकंड डे आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड डे 1 and 2 मतलब 17, तो 17 खत्म होती है उससे पहले उसको पेमेंट कर दो. ओके, और मंथली में बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 7th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, सपोज पहली तारीख તમે 30 તારીખ તમે કામ કરો છો, तो ऑन और बिफोर 1st से 31 जनवरी अगर आपने काम किया तो आपको 7 फरवरी तक आपका सैलरी दे देना चाहिए. अगर कोई चालू में जॉब छोड़ के गया तो उसको कब आपको सैलरी दे देना चाहिए? तो उसको विदिन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द सेसेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट दैट वी हैव स्टेड. ओके, देखो एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल दिया है. कैसी श्रीजी पैकेजिंग इंडस्ट्री इज अ पैकेजिंग यूनिट, कविता जोशी इज अ पैकेजिंग असिस्टेंट, और वो रिजाइन कर देती है 10 अप्रैल, मतलब 1 से 10 अप्रैल उसने काम किया. ठीक है, हर डेली वेजेस इज 800. देखो डेली वेजेस वाली. ओके, एंड शी हैज वर्कड 10 days बिफोर द लिविंग सर्विस. सो वेजेस ड्यू आर कैलकुलेटेड एज फॉलो. तो भाई डेली वेजेस 800 से 10 દિવસ કામ કર્યું તો એના 8000 રૂપિયા છે. therefore this amount 8000 must be paid to the Kavita Joshi within 2 working days from the end of the session. देखो जनरली तो देखो डेली वेजेस वाले को तो एंड ऑफ द डे दे ही देना है, तो 8000 એના जनरली બાકી નહીં હોય, પણ કદાચ કોઈ કારણોસર બાકી છે તો એ જોબ છોડીને જાય તો जनरली सपोज આ 10મીએ છોડે તો 10મી એના છેલ્લા દિવસનું જ બાકી હોય. एग्जांपल इज नॉट प्रॉपर. सपोज यहाँ मंथली बेसिस वाला है, फिर फोर्टनाइटली वाला है. पॉइंट ये है, ये एग्जांपल सूटेबल नहीं है क्योंकि ये डेली वेजेस वाले को तो आपको यहाँ पे ही मैंने बताया एट द एंड ऑफ द डे आपको पेमेंट कर देना है.
કદાચ છેલ્લા દિવસનું પેમેન્ટ એનું બાકી હોય 800 રૂપિયા, સોરી 800 રૂપિયા, તો છેલ્લા દિવસે એનું બાકી હોય તો એટ ધ એન્ડ ऑफ द डे તમારે पे કરવાનું જ છે. सपोज ये मंथली वाला या वीकली वाला हो और उसका कोई पेमेंट जॉब छोड़ रहा है, उस दिन बाकी पड़ा है, उसको 2 वर्किंग डेज में दे देना है. सो डोंट गो बाय दिस एग्जांपल. ओके, यू जस्ट रीड वंस, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. बट सी अगर ये केस में तो क्या होगा, रोज का रोज मिल ही जाता है तो सेशन के दिन कुछ बाकी होगा ही नहीं. कदाच છેલ્લા દિવસનું બાકી હતું તે પણ સાંજે લઈને જવાની છે. ओके, छेल्ले दिन का बाकी है तो उसके लिए लास्ट उसको 2 वर्किंग डे में पेमेंट कर दे. ठीक है. नाउ सी, जनरली देखो ये वर्किंग आवर्स आर रेगुलेटेड एज अ पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देखो वर्किंग आवर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नए लेबर लॉज ने वर्किंग आवर पे भी ध्यान दिया है कि कोई भी एम्प्लॉय है उसको ये पीरियड इतने टाइम से ज्यादा काम मत करवाए. अगर करवाते हो तो उसको ओवर टाइम गिना जाएगा और उसको ओवर टाइम अलाउंस देना चाहिए. So working hours are regulated as a part of relating to the condition of employment and worker welfare. Generally, the normal standard understood is as 8 hours per day and 48 hours per week. The maximum તમે આટલું જ કામ વર્કર પાસે કરાય છે કે દિવસમાં 8, ઓકે, और 6 days in a week हम गिनते हैं तो 48, 8 multiplied by 6 करोगे तो 48 hours per week. ओके, पर डे નું વર્કિંગ 8 કલાકથી વધારે ના હોવું જોઈએ, આખા વીક નું વર્કિંગ 48 અવર થી ના હોવું જોઈએ. And if employee works beyond this hour, then overtime wages become payable to as per the statutory framework. Okay, और overtime कैसे पे किया जाता है, तो overtime is paid at the twice of the normal working days. Okay, for this purpose normal hourly wage must be first calculated and then overtime is worked out on double of that amount. અહીંયા શું કરવાનું કે તમારે 1 કે 2 કલાક કોઈ વધારે કામ કર્યું તો એનો hourly rate calculate કરો અને એના પછી એને પેમેન્ટ કરો. So how it is calculated, how the overtime is calculated, the example is given. Okay, देखो Metro Auto Parts factory is a factory and Imran Sheikh is a fitter, earns wages of 26,000. वेजेस ही दिया, वेजेस मतलब यहाँ ही इज बेसिक प्लस बीए इज गिवन, डायरेक्ट कैलकुलेट करके. assume that he works 26 days in a month and 8 hours per day, so his overtime wages is calculated as follows. Okay, देखो उसने 26 वर्किंग डेज काम किया, उसका मंथली वेजेस कितना है, ओके 26,000, और उसका वर्किंग डेज इन अ मंथ कितना है 26. देखो एज पर रूल हाउ मेनी आवर्स ही शुड वर्क, तो ही शुड वर्क फॉर 8 आवर्स इन अ डे. तो अगर उसने 26 काम किया तो 208 आवर्स किया. ठीक है. हेलो, हाँ पराग, हमारी वाइफ ने मैं कीधेલું છે, 1 મિનિટ મને કહું, 1 મિનિટ. હા, ના ના ગાડીમાં જશે એટલે નીચે આવશે. બોલો 1-2 મિનિટ બેટા કોલ કરો. એટલે તને જ કરે કોલ. તો હા, પેલા પરાગ સર નીચે આવ્યા છે, એમને ગાડીની ચાવી લઈને જા નીચે અને એમને એમની ચાવી આપે અંદર આપણી ગાડીમાં કરે. અને એમને કે જે પાછળનો કાચ ખુલ્લો છે ને તો દરેક ગાડી ચાલુ કરી બંધ કરી આપો, બી બંધ કરી દે. હા, ઉભા છે નીચે. देखो लेट अस कम बैक टू द पॉइंट. तो देखो मंथली वेजेस उसको मतलब उसने कितना काम किया, टोटल वर्किंग आवर पर डे इज 8 डे. ठीक है, उसने 26 मल्टीप्लाई बाय 8 करना है तो 208 आवर्स. 8 नॉर्मल है तो नॉर्मली ही शुड वर्क फॉर दिस मच आवर. ओके,
तो सिर्फ नॉर्मल वर्किंग वेजेस इज 26, मतलब उसका पर आवर कितना हुआ, क्योंकि 125 उसको मिलना चाहिए। ओके, अभी उसने कितना ओवर टाइम किया है, हाउ मच ओवर टाइम ही डिड। ओके, ओवर टाइम रेट इज 100, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, देखो यहाँ पे मैंने प्रोविजन क्या बताया कि ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल वेज रेट। नॉर्मल वेज रेट हमने पहले उसका कैलकुलेट किया, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो उसको 250 पर आवर मिलना चाहिए। अब इमरान ने कितना वर्क ओवर टाइम किया है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, इमरान का ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट किया उसने, देखो जनरली he should work in a month for how many days। देखो आपको मैंने ऐसा बताया कि एम्प्लॉय शुड वर्क फॉर 48 आवर्स इन अ वीक, ओके, और 8 आवर्स इन अ डे। ओके, तो अगर हम कैलकुलेट करें कि भाई, अगर हम कैलकुलेट करें कि भाई एक दिवस ना 8 आवर्स, ओके, और 48 आवर्स इन अ वीक, तो इस हिसाब से हम देखने जाए तो उसका, अगर ये 48 को मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो हाउ मच शुड बी द वर्किंग डे इन अ वीक, 6 वर्किंग डे उसका होना चाहिए। और अगर एक महीने में 4 वीक होता है तो उसका कितना वर्किंग होना चाहिए, 24 वर्किंग आवर डेज होने चाहिए। ओके, अगर ऐसा ना गिनो आप, अगर आप ऐसे गिनते हो कि भाई 48 आवर्स इन अ वीक है तो 4 वीक के टोटल कितने हो, 48 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे आप, देखो 48 मल्टीप्लाई बाय, एक महीने में 4 वीक, 192 आवर्स इसके लिए। यहाँ पे कितना ओवर टाइम किया वो नहीं दिया, यहाँ सिर्फ रेट कैलकुलेट करना सीखा है, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ रेट कैलकुलेट करना सीखा है। तो अगर इमरान इफ डूइंग 10 आवर्स वर्किंग 10 आवर्स ओवर टाइम, ही विल बी पेड 2500। इनके एनो रेट કેવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરે સમજાય કે સપોઝ મંથલી વેજીસ એને 26000 છે ને એને ટોટલ વર્કિંગ ડેઝ 26 છે, ઓકે, 26 વર્કિંગ ડે એને કામ કર્યું। એવું જરૂર નથી બધા 8 કલાક જ બોલાવે, કોઈ 6 કલાક બોલાવીને, એટલે અલગ અલગ પરિસ્થિતિ હોય કે ટોટલ એના એક વીકમાં 48 કલાક થવા જોઈએ અને એક દિવસના 8 કલાકથી વધારે વર્કિંગ નહીં કરાવે। आने ऊपर गए तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ ओवर टाइम। तो हमें ओवर टाइम का रेट क्या होगा वो पहले निकालना पड़ेगा कि इसको 26,000 वेजेस मिलते हैं, ओके, उसके टोटल वर्किंग डेज कितने, तो 26, तो 26 उसने काम किया, अगर मिनिमम रेट गिनते तो 8, तो उसको उसने कितना आवर काम किया होगा, तो कि भाई 208 आवर्स उसने काम किया, ठीक है, तो 208 आवर्स का उसको 26,000 मिलता है। तो एक घंटे का कितना होगा, तो हमने क्या किया, 26,000 को 208 से डिवाइड किया, तो पर आवर कितना होगा, 125। तो ओवर टाइम वेजेस डबल देने, तो व्हाट इज द ओवर टाइम रेट, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 250 पर आवर। तो अगर इमरान 10 घंटे ज्यादा काम करता है तो उसको कितना ओवर टाइम मिलेगा, 2500। therefore इमरान शेख मस्ट बी पेड 2500 फॉर ओवर टाइम। एक दूसरा एग्जांपल दिया कि रिलायबल इंजीनियरिंग वर्क इज अ वर्कशॉप, Deepak Yadav is a welder earning 31,200 per month. Assume that working hours is at 26 in a month and 8 hours in a day. His overtime wages are calculated as follows। देखो monthly wages उसको कितना मिलता है, 31,200। वर्किंग आवर्स उसका है, सपोज सॉरी वर्किंग डेज है 26 है,
तो सी पर 8 मल्टीप्लाई पर मंथ पर डे मिनिमम आवर्स आर 8, तो टोटल कितना आवर्स काम किया 208। ओके, अब उसको 31,200 को उसने 208 से हमने डिवाइड किया तो 150 पर हुआ, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो गया हमारा 300 रुपीज पर आवर। अगर ये दीपक 6 घंटे ज्यादा ओवर टाइम करता है तो उसको कितना मिलेगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय, तो इस ओवर टाइम किसको गिनोगे, अगर उसका वीकली वर्किंग 48 आवर से ज्यादा हो गया ओवर टाइम, अगर उसका दिन का वर्किंग मैंने 8 घंटे से ज्यादा हुआ है, 8 घंटे से ज्यादा हुआ है तो ओवर टाइम, वीकली 48 से ज्यादा हो गया तो भी ओवर टाइम, डेली 8 घंटे से ज्यादा हो गया तो भी ओवर टाइम। ओके, तो ये ओवर टाइम के लिए दोनों क्राइटेरिया आपको देखना है कि कोई वीक में उसका अगर टोटल वर्किंग आवर 48 से ज्यादा हो गया, ओके, तो ओवर टाइम गिना जाए। ओके, तो ऐसे करके कैलकुलेट किया जाता है ओवर टाइम का वेज रेट। ओके, वही चीज वापिस रिपीट की गई है, इवन एम्प्लॉय वर्क्स बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर देन स्टैट्यूटरी ओवर टाइम में फॉलो होगा, ओवर टाइम इज पेएबल एज नॉर्मल वेज रेट ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल वेज। तीसरा एग्जांपल है मेट्रो ऑटो फैक्ट्री इमरान से, ये ऊपर वाला सेम एग्जांपल है, ये यहाँ पैराग्राफ में दिया है सेम एग्जांपल, ये 2500 वाला फिर से रिपीट होगा, ठीक है, आई एम नॉट डिस्कसिंग अगेन। सो हमने ओवर टाइम देखा, देखो ये एक पॉइंट यहाँ पे था, वो यहाँ मटेरियल में मैंने कवर नहीं किया, बट यू मस्ट नो कि ये जो है ना कोड ऑन वेजेस is also deals with the minimum wages। ओके, मिनिमम वेजेस के साथ भी वो डील करता है। तो मिनिमम वेजेस क्या है, तो देखो कोई भी एम्प्लॉय आपको यहाँ काम करता है तो आपको मिनिमम वेजेस देने पड़ेंगे। इट इज नॉट कवर्ड इन द मटेरियल बिकॉज हियर देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट, बट सी आई एम क्लैरिफाइंग विथ यू कि भाई गुजरात में क्या है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में आपको सेंट्रल लॉ पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये मिनिमम वेजेस फिक्स करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज येट नॉट अपडेटेड दैट रूल्स। और अगर मैं आपको एक स्टेट का पढ़ाऊं, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं सेंट्रल, तो हर एक स्टेट ना पढ़ना पड़ेगा कि आ स्टेट में कितना मिनिमम वेज रेट है, एंड कंसीडरिंग दैट आई हैव नॉट कवर्ड हियर, बट यू मस्ट नो कि मिनिमम वेजेस कैसे डिसाइड होते हैं, दैट यू मस्ट नो। ये आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मिनिमम वेजेस के लिए एज पर दिस लेबर कोड द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स द फ्लोर रेट। यू रिमेंबर द वर्ड फ्लोर रेट। फ्लोर रेट मतलब एक रेट दिया जाता है कि कोई भी वर्कर है, कोई भी सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, उसको मिनिमम इतना वेजेस तो मिलना ही चाहिए, दैट इज नोन एज फ्लोर रेट। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ फ्लोर रेट है एज ऑन डेट, इट इज 176 रुपीज पर डे। 176 તમે મિનિમમ વેજ ગૂગલ करके देखोगे फ्लोर रेट, तो इट इज 176, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया है तो एक फ्लोर रेट है, इससे कम कभी भी नहीं होगा अनस्किल्ड को, स्किल्ड को, किसी को भी। लेकिन फिर द गवर्नमेंट हैज गिवन द गाइडलाइंस दैट द appointed authority has the right to fix the minimum wage rate for the skilled worker, for unskilled worker और सेमी स्किल्ड वर्कर, और वो अपॉइंटेड अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट फिर क्या डिसाइड करती है, स्किल का कितना मिनिमम होना चाहिए, अनस्किल्ड का कितना होना चाहिए और सेमी स्किल्ड का कितना होना, ठीक है, और वो भी एरिया वाइज डिसाइड होता है, जोन वाइज डिसाइड। लाइक सपोज वी कैन नॉट कंपेयर द मिनिमम वेज रेट ऑफ मुंबई विद द वडोदरा और वडोदरा's वेज रेट विद द एनी तालुका। Okay, because everywhere the cost of living is different, working conditions are different. So see, minimum wages cannot be fixed at standard amount. तो स्टेट गवर्नमेंट वो देखती है कि भाई ये स्टेट है, ये इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री में अगर स्किल वर्कर है तो उसके लिए क्या रेट होना चाहिए, और अनस्किल्ड है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सेमी स्किल्ड है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो जोन वाइज the state government declares the minimum wage rate। तो हर एक एम्प्लॉयर को स्टेट के जो डिक्लेयर किए हुए रेट से वो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अभी इन गुजरात
सेमी स्किल्ड और स्किल्ड और अनस्किल्ड सबके लिए मिनिमम वेज रेट इज फिक्स्ड बाय द गुजरात गवर्नमेंट इज 328 रुपीज। ओके, तो 176 सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया। ओके, लेकिन ये 328 किसने फिक्स किया? स्टेट गवर्नमेंट ने। गुजरात की वर्किंग कंडीशन है, गुजरात की इंडस्ट्री है, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसके लिए जो मिनिमम वेज रेट फिक्स बाय द गवर्नमेंट, आई हैव रिमेम्बर्ड ओनली द स्किल एंड सेमी स्किल, ये दोनों के लिए 328 रुपीज पर डे इज फिक्स। तो कोई पण माणस गમે તે કામ કરતો હોય એને 328 થી ઓછા આપો તો it would be a violation of this code on wages. Okay, so लेकिन for every state, every place we cannot remember. So considering that I have not covered here, but see, for your knowledge, I have told you. So floor rate is what? It is a base government by the base rate given by the central government. उसका यूज करके हर एक स्टेट गवर्नमेंट को उसके स्टेट की वर्किंग कंडीशन, उसके स्टेट का कॉस्ट ऑफ लिविंग देख के उसका वेज रेट फिक्स कर दिया, और उससे कम कोई भी एम्प्लॉयर वेज रेट देखा तो इट वुड बी अ वायलेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एज पर द कोड ऑफ वेजेस। ओके, तो देयर आर मेनी स्टेट येट दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड द रेट, तो जो पुराना रेट चलता है वही चल रहा है। ओके, बट यू मस्ट नो कि देयर इज अ प्रोविजंस फॉर मिनिमम वेजेस आल्सो इन दिस लेबर लॉज और द वेजेस कोड। वेजेस कोड दूसरा मतलब देखो, मैंने आपको बताया कि वो पेमेंट के बारे में बात करता है कि कब पेमेंट कर देना है, वो हमने देखा। ओवर टाइम के बारे में बताया कि ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हमने देखा। अभी सी देयर आर सर्टेन एम्प्लॉइज, इसको बोनस भी देना पड़ता है। ओके, तो देखो वी विल टॉक अबाउट द बोनस। सी पहले देयर वाज वन पेमेंट ऑफ बोनस, अभी पेमेंट ऑफ बोनस एक निकल गया, उसकी जगह आ गया ये कोड ऑफ वेजेस। तो कोड ऑफ वेजेस के अंदर बोनस के बारे में क्या लिखा है कि कौन से एम्प्लॉय को बोनस देना चाहिए और कितना बोनस देना चाहिए, तो दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। तो देखो स्टैट्यूटरी बोनस, पहले पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था, उसके हिसाब से बोनस दिया जाएगा। नाउ जाता था, नाउ एज पर द न्यू लेबर कोड दैट इज कोड ऑन वेजेस, ओके 2019, ये क्या बात कर रहा है? देखो सेम जो पुराने एक्ट में था वही रिपीट है, कुछ नया नहीं, लेकिन यहाँ ये एक ही कोड में आ गया। तो यहाँ देखो लेट अस व्हाट इट सेज। देखो बोनस का लॉजिक क्या है कि व्हाई द बोनस इज टू बी पेड to those workers who are working at the floor level, at the lower level. Okay, उनके पसीने से एम्प्लॉयर कमाता है। So see, the employee should also be given some portion from the profit of the company, और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में से कुछ हिस्सा एम्प्लॉय को दिया जाना चाहिए, और उसको ही कहा जाता है बोनस। ओके, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, एक जैसे हम पीजीबीपी में कैसे सम गिनते हैं वैसे करके ये एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट गिनना पड़ता है, और वो प्रॉफिट का अगर वहां पे आपको प्रॉफिट है तो आपको गिनना पड़ेगा कि whether you are in a profit or not. और if there is a profit there, then out of that profit you are supposed to pay the bonus to the employee. If there is a loss, don't pay the bonus, but see whenever, और इस साल नहीं पे किया उसको बाकी रहेगा, और जब भी आप प्रॉफिट करोगे you have to pay that. ओके, ऐसा नहीं कि बोनस जब भी प्रॉफिट करेगी कंपनी तो ये पेंडिंग बोनस है, दैट आल्सो इट हैज टू पे। बट सी अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज व्हाट, कि वो हम इस यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन पीजीबीपी में कैसे करते हैं, ऐसा कैलकुलेशन है कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो रिकंसिलिएशन, आपका पीएनएल का प्रॉफिट है उसका रिकंसिलिएशन करके प्रॉफिट फॉर बोनस कैलकुलेट करना पड़ता है, और प्रॉफिट फॉर बोनस है उसमें से you have to pay certain portion to the employee as a bonus. Okay, but every employee is not eligible to claim the bonus, or every employer is also not liable to pay the bonus. So who is covered, who is not covered, this is given in this table. Let us discuss first from this material that statutory bonus is payable to the eligible employee. जो સૌથી પહેલા પેલી requirements છે દરેક employee ને નહીં, ખાલી જે eligible employee છે એને બોનસ મળશે। ઓકે, હવે એને એલિજિબલ એમ્પ્લોયી કોને કહેશું? who has worked at least 30 days in the accounting year, मतलब during the financial year. Okay, the employee should have worked for at least how many days? 30 days, 30 દિવસ કામ કરેલું હશે એ જ એમ્પ્લોયી બોનસ ને પાત્ર થશે। तो दिस इज वन रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट 30 डेज उसने, सपोज मैंने कल जॉब किया, चालू किया और कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया तो मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ऑफ इन अकाउंटिंग ईयर,
इन अकाउंटिंग ईयर मतलब देखो प्रॉफिट तो कब डिसाइड होता है, सपोज ये पर्टिकुलर ईयर है, सपोज ये अप्रैल से लेके मार्च तक का ईयर है 2025-26, ओके, ये बोनस ये ईयर है, ये इसको हम कहेंगे अकाउंटिंग ईयर। और ये अकाउंटिंग ईयर में आपने 30 दिन काम किया, बोनस कब दिया जाता है, ये अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होगा तब आपको पता चलेगा आप प्रॉफिट में हो या नहीं। तो प्रॉफिट पता चला, उसके प्रोविजन ऐसा है कि उसके 8 महीने में आप बोनस देंगे, उसके 8 महीने में, देखो मार्च में वर्ष पूરું થાય એના 8 મહિના આપણે જઈએ ને તો जनरली इट इज दी सितंबर, अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ओके, जनरली सितंबर एंड अक्टूबर, अक्टूबर आएगा, अक्टूबर इज द मंथ। जनरली अप्रैल से यहाँ आपका ईयर खत्म होता है, तब आपको पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है, और ये प्रॉफिट में से बोनस देना है एम्प्लॉइज को, और वो कितने महीने में देना होता है, 8 महीने का। जनरली आप देखो ये अक्टूबर में, जनरली अक्टूबर तक दे देना हो, जनरली कंपनीज भी अक्टूबर में देती है, और जनरली हमारे यहाँ अक्टूबर में क्या होता है, दिवाली, तो दिवाली के टाइम पे हम बोनस एम्प्लॉइज जो आपके फादर है लेके आते हो, भाई आप महीने से आपको बोनस मिले, तो बोनस दिवाली पे मिलता है। इसके पीछे ये लॉजिक है कि भाई आपको बोनस कब मिलता है, आपका अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है उसके 8 महीने के अंदर देना पड़ता है, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो। लेकिन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ही शुड हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 30 डेज इन अकाउंटिंग ईयर। तो અહીંયા તમે 8 મહિના 30 દિવસ કામ કરેલું હશે તો તમને અહીંયા બોનસ મળશે। સપોઝ તમે અહીંયા જ જોઈન કર્યું છે તો અકાઉન્ટિંગ યર તો જો આ અકાઉન્ટિંગ યરમાં તો કામ જ નથી કર્યું તો આનું બોનસ તમને આવતા વર્ષે મળશે। તો see in this accounting year if you have worked only for मतलब at least 30 days then and then you are eligible to claim the bonus। यहाँ देखो what is the basic eligibility कि which employee will get the bonus। So basic eligibility is that employee must have worked at least 30 days in a accounting year। तो જે accounting year છે એનું બોનસ તમને 8 મહિનાની અંદર મળે, જે accounting year છે એપ્રિલ થી માર્ચ એમાં 30 દિવસ કામ કરેલું હોય તો તમને મળે, ओके। देखो फिर दूसरा वेज कंडीशन, हर एक एम्प्लॉय को नहीं, तो एम्प्लॉय ने अकाउंटिंग ईयर में 30 दिन के लिए काम किया होना चाहिए। और दूसरी वेज कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय वेजेस मस्ट फॉल विद इन द नोटिफाइड वेज एलिजिबिलिटी लिमिट। देखो तो ये एलिजिबिलिटी लिमिट यहाँ भले नोटिफाइड लिखा है, यू शुड रिमेम्बर, याद रखो, ओके। आप अच्छी पेन से लिखी दो, हियर इट इज 21,000। आपका वेजेस कितना होगा, 21,000 होगा, तब तक ही आपको बोनस मिलेगा। सपोज आपका वेजेस हो गया 25,000 बेसिक प्लस डी है, यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम दी बोनस। बोनस कोने આપવાનું, જે નાનો માણસ છે ને, નાનો ક્યારે કહેશો, જ્યારે એના વેજીસ 21,000 સુધી હોય ત્યારે। वेजेस कोने कहेसो, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेंशन अलाउंस, ये तीनों का टोटल अगर उसका, और या फिर हमने वो आपके वो फॉर्मूला था उससे गिना ना, और वो वेजेस गिना है, और वो वेजेस अगर उसका 21,000 तक होता है तो ही, मतलब अकाउंटिंग ईयर में उसने 30 दिन काम किया होना चाहिए, और उसका वेजेस वो नोटिफाइड लिमिट के अंदर होना चाहिए। लिमिट के बाहर है मतलब वो बड़ा एम्प्लॉय हो गया, उसको बोनस नहीं मिलेगा। बोनस 21,000 तक जिसका वेजेस है, जो वेजेस हमने वो कैलकुलेट किया उस हिसाब से उसको उतना मिलेगा। देखो कंपनी कितना बोनस देगी, तो सी मिनिमम बोनस कंपनी को उसके एम्प्लॉय को इतना देना पड़ता है कि कोई भी एम्प्लॉय है तो उसको कितना बोनस दोगे, क्योंकि उसका जो वेजेस है और द अकाउंटिंग ईयर मतलब आखा વર્ષની અંદર એને જેટલા વેજીસ અર્ન કર્યા છે ને એના મિનિમમ 8.33% વેજીસ આપો। આ તમારી મિનિમમ લિમિટ છે, તમારે બોનસ આપવું છે તો કેટલું આપશો, તો કે એ અકાઉન્ટિંગ યરમાં એ એમ્પ્લોયીએ જેટલું આખા વર્ષનું કમ્બાઇન્ડ બોનસ પર મંથ નથી કરતો, કમ્બાઇન્ડ જેટલું એનું વેજીસ થતા હોય અકાઉન્ટિંગ યરના એના 8.33% મિનિમમ આપવું જોઈએ। અને સપોઝ કોઈ એમ્પ્લોય બહુ સારો છે કે ના મારે વધારે આપવું છે, તો વધારે પછી શેર હોલ્ડરને લોસ જશે, બધું તમે એમ્પ્લોયને આપી દેશો, બધું આપી દેશો તો શેર હોલ્ડર પાસે શું વધશે, એટલે મેક્સિમમ લિમિટ પણ ફિક્સ કરવી જરૂરી છે। મેક્સિમમ લિમિટ ઇઝ હાઉ મચ, you cannot pay the bonus 20% of the profit earned during the year।
राखा हुआ, सॉरी नॉट प्रॉफिट, वेजेस अर्न ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर में आपको जो भी एम्प्लॉय ने काम किया है उसका मैक्सिमम 20% और मिनिमम 8.33% तक आपको बोनस देना है, उससे ज्यादा बोनस नहीं देना है। तो ये रेंज के मतलब इससे कम नहीं, इससे ज्यादा। तो बोनस कब तक दे देना है? जनरली विद इन 8 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है उसके 8 महीने में आपको, जो अभी मैंने बताया, सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन इन अप्रोप्रिएट की, अगर कोई कंपनी के पास नहीं है तो गवर्नमेंट से, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से दे विल रिक्वेस्ट, and in that case the extensions are allowed. But see, generally as per the law you have to pay within 8 months from the end of the accounting year, मतलब अक्टूबर पहला। ओके, देखो मेन आइडिया क्या है, बोनस इज व्हाट स्टैट्यूटरी पेमेंट लिंक टू द एलिजिबिलिटी एंड पीरियड ऑफ वर्क एंड वेजेस अर्न। ओके, तो देखो ये आपको बोनस इतना देना पड़ेगा। किसको देंगे आप? ओके, एक दूसरा एक पॉइंट था, ये यहाँ मैंने कवर नहीं किया, लास्ट में एक पॉइंट है ना वहां पे कवर किया कि क्या एस्टेब्लिशमेंट है बोनस आपको चाहिए। देखो ये बोनस वाला जो एस्टेब्लिशमेंट है ये यार एम्प्लॉय की लिमिट नहीं है। ओके, मतलब તમે ગમે તેટલા એમ્પ્લોય કર્યા હોય, એલિજિબલ એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ एंड क्वालिफाइड एम्प्लॉय। और एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं? जो एस्टेब्लिशमेंट प्रॉफिट करता है वो एस्टेब्लिशमेंट को हम एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। और वो इस हिसाब से प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया ना, जैसे पीसीबीपी में कैलकुलेट करते हैं वैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, पीएनडब्ल्यू में प्रॉफिट नहीं लेना। और वहां का प्रॉफिट में है अपने कितने भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कर रखा है वो नहीं देखना। और अगर आपके पास एम्प्लॉय ऐसा है जिसने अकाउंटिंग ईयर में 30 डेज काम किया है और उसका सैलरी वेजेस कितना 21,000 से कम है, तो ऐसे एम्प्लॉय को आपको बोनस देना पड़ेगा। मिनिमम कितना? ये पूरे अकाउंटिंग ईयर में उसने जितना काम किया है, जितना उसका वेजेस हो रहा है, उसका मिनिमम 8.33% और मैक्सिमम 20% तक आप दे सकते हो। ये रेंज के अंदर आप बोनस दे सकते हो। हम गिनते हैं, मैं आपको गिन के बताता हूँ, तो यू विल गेट द क्लैरिटी। ओके, बट सी लेट अस कम टू द वेजेस फर्स्ट, सॉरी बोनस फर्स्ट। ये बोनस के ही पॉइंट्स है, यहाँ सम्स है, आपको क्लैरिटी आ गई। देखो तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया कि बोनस इज नॉट पेएबल टू द एवरी पर्सन ऑटोमेटिकली। देयर आर 3 ब्रॉड स्पेसिस must be explained. First, whether the person is eligible employee. एलिजिबल एम्प्लॉय किसको कहोगे? जिसने 30 दिन मिनिमम अकाउंटिंग ईयर में काम किया है और विद इन नोटिफाइड वेज लिमिट, है ना, उसका वेजेस कितना 21,000 से कम है। ओके, तो उसको हम गिनेंगे एलिजिबल एम्प्लॉय। सेकंड इज वेदर द एम्प्लॉय हैज वर्क फॉर एटलीस्ट 30 डेज इन अकाउंटिंग ईयर। वो आपने बताया, मैंने वही बताया कि एलिजिबल एम्प्लॉय का मतलब 21,000 30 दिन काम किया। और थर्ड वर्किंग कंडीशन क्या है? द वेजेस अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर फॉर द बोनस कैलकुलेशन। तो थर्ड इज व्हाट, कि भाई उसने कितना वेजेस काम किए, कितना वेजेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर अर्न किया है, उसका 8.33 से 20% की रेंज में आपको बोनस देना है। तो ये मिस्टर कोई दीपक का एग्जांपल दिया है, सॉरी ये एक कंपनी है उसका एग्जांपल दिया कि कितना कितना बोनस दे सकता है। ओके, तो देखो एक एग्जांपल दिया है कि ग्रीन लीफ डिपार्टमेंटल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड इज अ रिटेल एस्टैब्लिशमेंट। इसमें कोई काम कर रहा है मिस्टर सूरज है, ये तो सेल्स असिस्टेंट है। इस बोनस is bonus eligible and earn rupees 1,80,000 during the accounting year। देखो उसने जो वेजेस अर्न किया उसका अमाउंट आपको दे दिया है कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर उसने ये 1,80,000 रुपया कमाया। ओके, उसका वेजेस कितना होगा? यहाँ सीधा परसेंटेज निकाल के दे दिया कि भाई वेजेस अर्न ड्यूरिंग द अकाउंट ईयर इज 18,000, उसको मिनिमम 8.33 और मैक्सिमम मिनिमम इस, देखो इतना मिनिमम वेजेस आप बोनस दे सकते हो। अगर उसको मैक्सिमम देना है तो ये लिमिट में दे सकता है। मतलब ये रेंज के बीच में उसका बोनस बनना चाहिए, इससे ज्यादा बोनस नहीं दे सकते। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक अपना एग्जांपल देके यू गेट मोर क्लियर। फॉर एग्जांपल, एज पर दिस बोनस का जो पहले देखो, सबसे पहले बोनस को पे करना है अच्छे से समझ।
अगर आप बोनस कौन पे करेगा, क्योंकि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, ओके, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट को बोनस देना पड़े, लेकिन कब, इफ ही इज एलिजिबल। एलिजिबल कब होगा, अगर उसने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट किया। वो हमारा P&L वाला प्रॉफिट नहीं, वो ये जो कोड है उसमें प्रॉफिट गिनने का तरीका दिया है, वो तरीके से आप कैलकुलेट करते हो और वहां पे प्रॉफिट है, तो आपको आपके एम्प्लॉइज को बोनस देना पड़े। ये एक हुआ। अभी हम एम्प्लॉय की बात करें, कौन से एम्प्लॉय को आप बोनस दोगे, तो वी विल पे द बोनस टू द एम्प्लॉय जिसने, सपोज मैंने आपको बताया कि ये 2025-26 है, 2025-26 ये मेरा, इसको मैं कहूंगा अकाउंटिंग ईयर, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग ईयर जो है, अकाउंटिंग ईयर के अंदर वो एम्प्लॉय ने मिनिमम कितने दिन काम किया होना चाहिए, तो मिनिमम उसने 30 डेज काम किया होगा। और वो कौन से एम्प्लॉय को हम बोनस देंगे, तो जिसका वेजिस, वेजिस का मतलब मैंने आपको अभी कैलकुलेट करना सिखाया कि भाई बेसिक प्लस DA प्लस रिटेंशन प्लस दैट 50% रूट, वो सब मिला के उसके जो वेजिस कैलकुलेट करते हैं वो कितने होने चाहिए, अप टू 21,000। अगर इससे ऊपर गया तो एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल फॉर, कि उसको अच्छा सैलरी मिल रहा है, मतलब ही उसको बोनस देने की जरूरत नहीं। तो कौन सा एम्प्लॉय एलिजिबल होगा, कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर उसने 30 डेज काम किया होना चाहिए और उसका वेजिस जो है वो 21,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 21,000 पर मंथ की बात है। लेकिन जब हम बोनस पे करते हैं, ओके, सपोज मैंने कोई कंपनी है उसके लिए कैलकुलेट किया कि भाई ये कंपनी का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया एज पर दैट पर्टिकुलर लॉ, और वो लॉ के हिसाब से हम कैलकुलेट किया और पता चला कि ये कंपनी तो प्रॉफिट में है, बस इतना देख लिया ना प्रॉफिट में, तो ये कंपनी को बोनस देना पड़े। कितना बोनस दे सकती है कंपनी, क्योंकि भाई जो एम्प्लॉय है उसको देखना पड़ेगा, इसका पर मंथ वेजिस 21,000 हो रहा है, पर मंथ वेजिस 21,000 से ज्यादा है या नहीं। अगर अगर कोई एम्प्लॉय पर मंथ वेजेस उसका 25,000 से ऊपर चला जाता है, 21,000 से ऊपर चला जाता है, तो एम्प्लॉय तो एलिजिबल ही नहीं। अगर कोई मिस्टर एक्स करके एम्प्लॉय है और उसका सपोज सालाना से वेजिस होता है से ₹1,25,000, 1,25,000 मतलब, देखो अगर मैं 1,25,000 करता हूँ, मतलब सपोज आपको तो मंथली ही देखना है, समझ लो, ऐसे मत देखिए ना। हमें क्या करके ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर उसने कितना कमाया है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर सपोज ही हैज अर्न अ पर्टिकुलर अमाउंट, और हमने ये भी चेक किया कि भाई ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर हिज वेजिस, जब तक उसका वेजिस 21,000 से ज्यादा नहीं हुआ है, वो पूरे पीरियड का वो बोनस लेने के लिए एलिजिबल है। एक समझ लो मैंने ये पूरे साल में 12 महीने काम किया और हर 12 महीने, पूरे 12 महीने में मेरा सैलरी 20,000 वेजिस बन रहा है, मतलब पूरे साल का मेरा वेजिस कितना हुआ, 2,40,000। देखो मैंने पूरा साल काम भी किया है, हर महीने का सैलरी मेरा वेजिस मेरा 20,000 था, मतलब पूरे साल का 240। तो मुझे मैक्स मिनिमम मेरा एम्प्लॉयर कितना बोनस दे सकता है, कि ये 240 का 8.33%, या तो मैक्सिमम कितना दे सकता है, कितने 2,40,000 का 20%। इससे ज्यादा बोनस मेरा एम्प्लॉयर मुझे नहीं दे सकता और इससे कम नहीं। ओके, तो दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पे यही रेंज बताई है। तो एक दूसरा एग्जांपल भी दिया है कि देखो, रितु सिंह वर्क्स इन अ सेम रिटेल एस्टेब्लिशमेंट बट सी हैज वर्क फॉर 25 डेज इन अकाउंटिंग। सब गया अकाउंटिंग में खाली 25 દિવસ काम करेंगे, 25 દિવસ काम करी है, तो सी इज नॉट एलिजिबल फॉर रिसीविंग द बोनस। तो सिंस qualifying requirement is 30 days, she does not become to entitled to get the bonus. So because working days is 25, which is minimum 30 days से कम है, तो she will not get the bonus। ये बात की गई है। अभी देखो, एम्प्लॉई ज्वाइनिंग ड्यूरिंग द ईयर बट बिकमिंग कंप्लीटिंग मोर देन 30 डेज, अगर कोई चालू साल में जॉब ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ ज्वाइन किया कोई, सपोज समझी लो તમે फेब्रुआरी में ज्वाइन करी, फेब्रुआरी मार्च, तो 30 દિવસથી વધી ગયા, तो यू आर एलिजिबल। तो देखो, ड्यू डेट
Home Needs Private Limited is a consumer goods retail company. Neha Sharma joined on 1st October and worked for 6 months during the accounting. 6 મહિના કામ કર્યું. So see, her bonus eligible wages for the period will be how much? Suppose 90,000. Suppose એલિજિબલ બોનસ માટેના વેજીસ 90,000 છે અને 6 મહિનાની અંદર ટોટલ એને વેજીસ કમાયા છે 90,000. તો 90,000 ના 8.33% આટલા મળી શકે એને. અને મેક્સિમમ સપોઝ કંપની આપે તો કેટલા? એટલે આ રેન્જ થી વધારે કંપની, એટલે આનું બોનસ કેટલું બની શકે? તો કે બોનસ કેન બી बिटवीन these two. ये 7,497 और 18,000, ये दोनों के बीच का कोई अमाउंट बोनस का हो सकता है. और सी टाइम ऑफ पेमेंट तो क्या 8 महीने में दे देना है. तो सी Sunrise Appliances closes the accounting year on 31st March. The bonus is payable for that accounting year. It should be ordinarily paid within 8 months from the close of the accounting year. Accounting year તમારું 31 માર્ચે ક્લોઝ થાય અને એમાં તમે 8 મહિને એડ કરો તો કઈ ડેટ આવે? ઓક્ટોબર નહીં, મારી ભૂલ થઈ, ડિસેમ્બર, નવેમ્બર આવે. એના પહેલા નવેમ્બર, એટલે નવેમ્બર ઇઝ અ ડ્યુ ડેટ. નવેમ્બર પહેલા તમે દિવાળીમાં ઓક્ટોબરમાં આપવું છે આપી શકો. Therefore bonus is ordinarily paid by 30th November. આના પહેલા એટલે બાય 30 નવેમ્બર કે એના કરતા પહેલા પે કરી દેવું. ઇન સમરી 4 પોઈન્ટ मैंने आपको बता दिए कि भाई 8 થી 33% બોનસ આપવું જોઈએ, 30 દિવસ કામ કરેલું હોવું જોઈએ. 21,000 वाली बात અહીંયા કોઈ જગ્યા નથી કરી, પણ यू मस्ट नो कि जिसका वेजिस 21,000 है से या इससे उससे कम है उसको ही बोनस मिलेगा, उससे ज्यादा है उसको बोनस नहीं मिलेगा. ओके, now this is a code on security. Okay, this we will going to discuss tomorrow. Okay, tomorrow we will going to discuss. Now once I'll reach at my home and will then after I will give you the tomorrow timing. કાલે સાંજે તો 110% હશે જ આપણું લેક્ચર. પણ see if it is convenient to me और अगर मुझे बाहर नहीं जाना हुआ तो I will take the lecture in tomorrow morning. Tomorrow morning अगर मैं लेता हूँ तो 10 से 11 ऐसा कुछ टाइम रखूंगा. Will it be convenient to all of you? So Yes, sir. okay, तो अगर मतलब by tomorrow I have to complete this. So if possible I will inform you in a group. सुबह में 10 बजे होगा और शाम को 6:30 8 तो होगा. Okay, so I'm